تین رسمیں. پہلے نمبر پہ بچہ پیدا ہوتا اس کے اوپر ایک ہانڈی رکھتے, وہ ٹوٹ جاتی تو کہتے واہ 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 بچہ بہادر ہے, نہ ٹوٹتی تو کہتے بچہ بزدل ہے. دوسری چار رسم عرب کی یہ تھی کہ بچے کی آنکھ میں سرما ڈالتے تھے, وہ ہوتا تھا بتوں کے پاؤں کا. تیسری چار رسم یہ تھی کہ انہوں نے ایک سانپ رکھا ہوا تھا, تاریخ نے اس کا نام رکھا ہے معیار الولد. وہ سانپ کرتا گیا تھا, وہ کھانے کا ایک ڈھونک تھا, وہ ادھر سے سانپ چھوڑتے, ادھر ماں کی ممتا نرم ہو جاتی, ادھر ماں روک کہتی نہ چھوڑو سانپ, کچھ نہ کچھ ابو جہل کو لگا دیتی, وہ سانپ پکڑ کے تھیلے میں ڈال لیتا. مداری تھا نا. جو نبی اور نبی کی آل کا دشمن ہو وہ مداری ہوا کرتا ہے. دشمن سادات تھا, دشمن ہاشم تھا, سانپ ڈال لیتا, کہتا نہیں 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 کوئی رسم نہیں کرنی, کوئی رسم نہیں کرنی, چھوڑ دے چھوڑ دے. لگ جاتا تھا کچھ نہ کچھ, پیسے ویسے مل جاتے تھے, پیسے تو ہوتے نہیں تھے, چاندی چوندی مل جاتی تھی, جو اس وقت کا سکہ تھا اسے مل جاتا تھا. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے. اب آپ لوگوں نے ذہن بیدار کرنا ہے. میں نے تم لوگوں کے ذہنوں کے خانے میں اپنی چیز امانتر رکھی ہے, اور وہ ہے کہ رشتے ہوتے تھے, نکاح نہیں ہوتے تھے, اور لوگوں کو رشتوں پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا تھا. اب اللہ کی قسم کے تاریخ عرب کا مورخ گواہ ہے کہ 13 رجب کی آئی, اللہ کے گھر میں اللہ کا علی آیا, نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا, 16 رجب کو لے کے گھر آئے. پتہ نہیں اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا, ہم اہل سنت کی کتابوں میں ضرور لکھا ہے. میں شیعوں کی کتابیں پڑھتا نہیں ہوں, اپنے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. 13 رجب کی آئی کہ کعبے میں علی آئے, اٹھایا, سینے سے لگایا, گھر لے کے آئے. آ گیا بابا بستر اٹھا کے, اچھا اور کسی کو پتا ہو نہ ہو, پنجاب والے اس بستر کو بہت جانتے ہوں گے جو ابو جہل اٹھاتا تھا. یہ بستر اٹھا کے اس نے کہا میں نے عرب کی تاریخ کے مطابق رسمیں کرنی. نبی نے کہا اٹھا بوری بستر, دفع ہو جائے یہاں سے, تجھے پتا نہیں ہے ہاشم کا خاندان ہے, صحن بنو ہاشم ہے, تم یہاں پہ آ کے یہ 4 رسمیں نہیں کر سکتے, ہم علم والے. اس نے کہا میں نے کرنی ہی کرنی ہے, میں نے کرنی ہی کرنی ہے, میں نے کرنی ہی کرنی ہے. یہ آ گیا زد میں, جو زد میں آ جائے وہ ابو جہل ہوتا ہے. زد میں آ گیا, جو زد میں آیا ابو جہل ہوتا ہے. کہنے لگا نہیں میں نے کرنی ہے. علی کی علی ماں نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے مسکرا کے کہا محمد اسے کرنے دے جو کرتا ہے. ابو جہل نے ہانڈی رکھی, ٹوٹ گئی, سرما ڈالنے آیا, تھپڑ پڑا. نہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اس نے کہا چلو تھپڑ پڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس ابو جہل نے اپنی کمینگی کی انتہا کی, اس نے اپنے تھیلے میں سے سانپ نکالا. اب سنیوں کی کتابیں گواہیں, پتہ نہیں شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. ادھر سے سانپ چلا, ادھر سے علی نے مسکرانا شروع کیا. سانپ نے پگوڑے کے اوپر آ کے منہ کھولا, علی نے ننی ننی 2 انگلیاں سانپ کے منہ میں دی, انگلیاں کھولی, آدھا سانپ چر کے ادھر گرا, آدھا سانپ سن لو, آدھا سانپ چر کے ادھر گرا, آدھا سانپ چر کے ادھر گرا. ابو جہل رو کہتا محمد اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ رشتہ ٹھیک تھا یا رشتہ غلط تھا, رشتہ ٹھیک تھا یا رشتہ غلط تھا, یہ بچہ حلالی تھا یا کہ حرامی تھا, کس کی پہچان کریں گے؟ آقا نے فرمایا بکواس بند کر, یہ سانپ کیا بتائے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ اس کی پہچان یہ بچہ ہے جو اس کا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہ حلال زادہ ہے, جس کا چہرہ مرجھا جائے حرام زادہ. رشتے ہوتے تھے, نکاح صرف صحن ہاشم میں ہوتا تھا, اور نبی کا نکاح پڑھانے والے کا نام حضرت عمران, کنیت حضرت ابو طالب. میرے قائد محترم شیخ الاسلام مجدد رواں صدی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہا کرتے ہیں کہ عمران وہ ہے جسے کافروں نے مسلمان اور مسلمانوں نے کافر کہا. کافروں نے مسلمان, مسلمانوں نے کافر, کافروں نے مسلمان, مسلمانوں نے کافر کہا. عمران وہ ہے.
शर्फ हासिल है हजरत अबू तालिब को निकाह मुस्तफा पढ़ाने का। अगर आप लोगों की तवज्जो हो तो आखिरी जुमला पेश करके मैं आपसे इजाजत ले लूं। जो बंदा थक चुका है वो उठ के बाहर चला जाए, जो अक चुका है मस्जिद में जाके गुनाहों की माफी मांगे। अली का जिक्र ना थकने देता है ना अकने देता है। इस फकीर मलंग हामिद रजा सुल्तानी की गुफ्तगू का आखिरी लम्हा सुन लो, जाओ जिंदगी में काम आएगा। निकाह तुम्हारे भी हुए हैं, निकाह मेरा भी हुआ है। तुम भी निकाहों में जाते हो, मैं भी निकाहों में जाता हूं। मेरी तो जाना मजबूरी होती है, मैं पढ़ाता हूं। मैं तो जाके पढ़ाता हूं। मेरे चुप सामईन, आप भी शादियों में जाते हैं, मैं भी शादियों में जाता हूं। तो ऐसे ही तवज्जो चाहिए मुझे। मैं आज से 1.5 साल पहले एक बहुत बड़े वजीर की बेटी की शादी में गया। घर से निकलते हुए मैं निकाह के फार्म भी साथ ले गया। वाह वाह। जहन में मौलवियत थी, कोई बंदा कहेगा सुल्तानी निकाह पढ़ा दे, दिहाड़ी लग जाएगी, गुजर औकात अच्छा हो जाएगा। उस वक्त में इमाम हुसैन का नौकर नहीं होता था। जब से इमाम हुसैन का नौकर हुआ, वजीर मेरी गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं। सच्ची बात है, दुनिया को यही जाके बताता हूं, अच्छा खाया ही तब है जब नौकरी हुसैन की है, अच्छा पहना ही तब है जब नौकरी हुसैन की है, अच्छे लोगों से मिला ही तब हूं जब नौकरी हुसैन की है। सुन्नी भाइयों, मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, अगर कोई मुश्किल है अली अली करो, अगर कोई परेशानी है तो जनाब ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करो, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह को मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह जिन्हें मानता है तुम उन्हें मनवा लो, अल्लाह खुद ब खुद मान जाएगा। फॉर्म मैं साथ ले गया, तो जो है भजन आपकी मोहब्बत साथ ले गया, ताकि कोई कहेगा निकाह पढ़ाओ तो पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, मैं वहां गया तो मेरे तरह के 7-8 और किबला यकीन जानिए, मैं सच्ची और खरी बात कर रहा हूँ, कोई नाराज होता है तो हो जाए। मैं वहां पे गया, अहले सुन्नत उलमा भी थे, अहले तशय्युअ उलमा भी थे। शाह जी, जो सुन्नी उलमा थे मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, जो शिया मौलवी थे उनसे मैंने कहा या अली मदद। एक मौलवी साहब अक्के सड़े मन कहते हैं सानू सलाम अलैकुम देना या अली मदद। मैं कह अली वाले या अली कही दे तो मुल्करां नूं सलाम अलैकुम कही दे। एक और मौलाना मेरे करीब आए कहते हैं सुल्तानी यार तू बड़ा तेज हो गया, गाड़ी शाड़ी तूने ले ली है, गन मैन तूने रखे हुए हैं, बड़ा अमीर आदमी हो गया। अच्छा ये बात बता, ये शिया जो है ये सलाम लेने से पहले या अली मदद क्यों कहते हैं? जिस तरह तूने आके इस मौलवी साहब को देखा ना, ये जो आयतुल्लाह बैठा हुआ है पाकिस्तान को पहन के वाकबा बैठे, मैं तो पहले चेक ही करता रहा 1 नंबर भी है कि 2 नंबर है, ये सुफियानी शिया है कि इमरानी शिया है, मौसवी साहब की जुतियां सीधियां करता है कि कोई नहीं करता। मैं ये सोचता रहा, इस सोच में गुमराह। मैंने चुप सामीन मैंने उससे कहा भाई ये शिया कौम बड़ी सियानी है, ये सलाम करने से पहले या अली मदद कहकर बंदे को चेक कर लेते हैं बंदा सलाम के काबिल है या कि नहीं। सुन्नियों को समझा रहे हो यार, तुम क्यों परेशान हो गए? क्यों परेशान होकर बैठ जाते हो यार तुम लोग? अल किस्सा मुख्तसर, इस टांग में हामिद आया सुल्तानी आंखें खोल के कभी इधर कभी उधर देखता रहा। कोई बंदा मिले जो वाकफकार हो, कहे सुल्तानी चला वजीर साहब की बेटी का निकाह पढ़ा, लेकिन मेरी किस्मत कि मैं देखता रहा और माइक से ऐलान हो गया प्लीज साइलेंट, रस्में निकाह शुरू की जाती है। निकाह पढ़ाने के लिए हमने दावत दी है मौलाना तारिक जमील साहब को, जो मकतबा फिक्र रायविंड के तबलीगी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन है। यकीन करो मौलवी है तो बंदे का पुत्र है। तारिक जमील साहब बहुत अच्छी शख्सियत है, इसलिए कि हुसैन को मानते हैं। शहादत हुसैन पे मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीरें मौजूद हैं। हाँ सच्ची बात कह रहा हूं, मुझे उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन मुरीद शाह जी जब मौलवी साहब ने
निकाह पढ़ाने के लिए कदम उठाया, मेरा मौलवी मर गया। मैं सोच में गुम के यार मुझे कह देते निकाह पढ़ाने का, इसे क्यों बुला लिया है? परेशानी के आलम में कभी इधर देखता हूँ गुस्से के साथ, कभी इधर देखता हूँ। साथ वाली मौलवी ने कहा आगे तो बड़ा खुश था, अब क्यों परेशान होकर बैठा है? मैंने कहा इसलिए कि मुझे दुख हो रहा है कि तू भी मौलवी, मैं भी मौलवी, ये भी मौलवी, ये भी मौलवी। तुझे कह देते निकाह पढ़ाने का, मुझे कह देते निकाह पढ़ाने का। देखो इसे बुलाया है खानेवाल से निकाह पढ़ाने के लिए। मौलवी ने कहा चुप कर, ऐसा बोल, तुझे पता नहीं बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है। जब लड़की बड़े घर की हो, लड़का बड़े घर का हो, तो निकाह खान बड़ा चाहिए। मेरे दिल में हुसैन की मोहब्बत आई। मैंने कहा मौलवी इंसाफ कर, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खदीजा से अमीर कोई नहीं। निकाह हो गया, हो गया, अच्छा ठीक है, क्या करूं अब? अकल कहती है कि छोड़ दे, ना पढ़। इश्क कहता है कि पढ़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अकल कहती है ना पढ़, इश्क कहता है कि पढ़। अकल कहती है ये बंदे थक चुके हैं। इश्क मेरा जब तुम लोगों ने अली अली किया तो इश्क ने आगे से मुस्कुरा के पता क्या कहा, देखा मैंने कहा था ना कि पढ़, छोड़ अकल को, पढ़, ये इश्क वाले हैं। अच्छा फिर ये इश्क मुझसे कुछ कह रहा है, ये कहता है इनसे सौदा कर ले। ये किसी को कुछ देते हैं तो कहते हैं नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन, ये किसी से कुछ लेते हैं तो कहते हैं नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन। इश्क कहते हैं इनसे सौदा कर ले, तो इन्हें नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन शान अबू तालिब सुना दे। ये नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन तुझे दुआ बजरिया दाद दे देंगे। अब जिसको ये सौदा मंजूर है ना, जो खाता भी नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन है, देता भी नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन है, उस बंदे का चुप रहना उसके कमजोर ईमान की दलील है। मेरे चुप सामीन, इस जुमले में मुझे आपने इतनी दाद देनी है कि जिंदगी में मैंने इतनी कभी दाद ली ना हो। लेकिन आप जितनी भी दाद देंगे मैं राजी होने वाला नहीं। चौधरी के बाप की तारीफ करो तो चौधरी राजी हो जाता है। मैं अली के बाप का कसीदा पढ़ रहा हूं, लाजमी बात है मौला अली राजी होगा। जिसने अपने अपने इमाम अली को राजी करना है, मेरे जुमले के आखिर पे वो अली के बेटे सखी शाहबाज कलंदर के नाम की सलामी अली के बाप को देगा। पता चलेगा कि सिंध के रहने वाले शाहबाज कलंदर को कैसे मानते हैं। हमारे पंजाब की धरती पे जब बोलो बोलो का लफ्ज आता है ना, तो सुन्नी शिया भाई खड़े होकर यूं नामे अली का विर्द करते हैं कि बच्चा बच्चा शाहबाज कलंदर का नारा लगा के अली 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 कह के मुनकर मार देता है। तुम तो रहते ही सिंध के अंदर हो, खाते ही शाहबाज कलंदर का सदका हो। लिहाजा मैं तुमसे कोई अपील नहीं करता कि तुम चाहे खड़े हो चाहे बैठे रहो, लेकिन अली अली लाजमी करना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अली अली करना सिखाया है। हो गई शादी, मिल गई निकाह, हो गया निकाह, मिल गई इजाजत। अब निकाह होने के बाद फौरी तौर पे एक काम किया जाता है, वो है निकाह खान को फीस दी जाती है। बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था। लड़के के बाप ने फीस देने के लिए जेल से चेक बुक निकाली, चेक काट के मौलवी साहब के हाथ में दिया। हामिद रजा सुल्तानी गुजरात से लेके लाहौर तक यही सोचता रहा कि बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था। अल्लाह ने निकाह की फीस भी, अल्लाह के बंदों ने निकाह की फीस भी बड़ी दी है। 1000, 2000, 3000 नहीं, कम अज कम मौलाना तारिक जमील साहब को वजीर की बेटी का निकाह पढ़ाने की फीस हजारों रुपया मिली है। इस सोच में गुम मैं गुजरात से लाहौर तक यही सोचता आया कि जब हजरत अबू तालिब ने तेरे मेरे प्यारे नबी का निकाह पढ़ाया, अल्लाह ने कोई निकाह की फीस दी या के नहीं दी, दी या के नहीं दी, दी या के नहीं दी। इस सोच में गुम होके मैं घर आया, कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान की आयत मेरे सामने आ गई, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबहियान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अबू तालिब जा, अल्लाह का तुझसे वादा है, मैं तुम्हें निकाह की फीस देता हूं। तूने मेरे मोहम्मद का निकाह फर्ज में बैठ के पढ़ाया है, मैं फीस के तौर पे तेरे अली का निकाह अर्श में